ناظرین شام 7 بجے تو خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس من حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ اسمبلی انتخابن ہند انتظار جموں کشیر ہند لوکن پتمہ کیا کال پہ الیکشن کمیشنس پز انتخاب عمل مز انس حوالہ سنجیدہ قدم تلن عمر عبداللہ بنگلہ دیش حالات ہمسائے ملکن باپت ذہنون نوجوان ہند مطالبہ پورے کرن سٹھا ضروری محبوبہ مفتی بڈگامس مز آنگن واڑی ورکرو تو ہیلپرو طرف احتجاج انتظامیہ خلاف نعرہ بازی انصاف فراہم کرنے مظاہرینو منگ تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل نیشنل کانفرنس پارٹی ہند صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ آز سرینگرس من ذرائع ابلاغ کن نمائندن ہندن سوالن ہند جواب دیوان ونمت ز بنگلہ دیشک موجودہ صورتحال سٹھائی تشویشناک یل زن تمو ات موقع پہ سوالن ہند جواب دیوان ون ز جموں کشیر مز یہ نیشنل کانفرنس پارٹی طرف اسمبلی انتخابن دوران کن تہ سیاسی جماعت ست اتحاد کرنے بلکہ لڑ نیشنل کانفرنس پارٹی جموں کشیر مز اسمبلی انتخاب پنس بلبوتس پہ دیکھیے تاریخ کا اعلان ہو یا نہ ہو مگر الیکشن کمیشن آ رہا ہے وہ سب سے بات کرے گا اور پھر یہ حکومت ہندوستان کے ساتھ بات کر کے تاریخ مقرر کریں گے یہ خود تاریخ مقرر نہیں کر سکتے آج سب کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا مودی جی اور ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں ان کے ہاتھ میں آج دیکھیے یہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے اس کا بھی ایک دن جنازہ نکلے گا پھر دیکھنا دوسری حکومت کیا کرے گی کوئی بڑی بات نہیں انسان حج کرنا چاہے گا یہ کیوں بند کرے گی اس کو وہ ان کے پیسے پہ تو نہیں جا رہا ہے وہ تو اپنے پیسے پہ جا رہا ہے اب تو ان کی طرف سے کوئی کنسیشن نہیں ہے سارے کنسیشن تو ختم ہو گئے ہیں یہ کیسے روک سکتے ہیں اگر ایک آدمی امرناتھ یاترا جی کی یاترا کے آئے گا کیا ہم سے کہیں گے تم دوسرے وہ نہیں آ سکتے ہیں یا بدری ناتھ کی یاترا کے لیے جائے گا اس سے کہیں گے تم بدری ناتھ پھر نہیں جا سکتے یہ کیا ہے یہ مذہبی معاملہ ہے مذہبی معاملے میں حکومت کو زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے ہم لوگ کوئی گٹبدن نہیں کریں گے بالکل نہیں کریں گے دیکھیے آپ تو میرے خیال سے انتریامی ہیں انتریامی ہو کے ہی آپ یہ بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کا الگ معاملہ ہمارا دیش کا الگ معاملہ ہے بنگلہ دیش میں حسینہ جی پرو انڈیا تھی وہاں کے لوگ پرو انڈیا نہیں ہیں یہ صاف اور جب تک وہ چلا سکی چلائے آج ہندوستان کو خطرات کے معاملہ میں تیار ہونا چاہیے آج کوئی بھی ہمارا پڑوسی ہمارا ساتھی نہیں ہے ہم اکیلے ہیں وہ پاکستان ہو نیپال ہو اپنا بنگلہ دیش ہو یا شری لنکا ہو افسوس اس بات کا اس بڑے بھائی نے ان چھوٹے بھائیوں کو ناراض کر دیا ہے اور ضرورت ہے کہ ساکھ جو ہے اس کو ریوائیو کیا جائے اور بڑے بھائی کا فرض ہندوستان کو ادا کرنا چاہیے سب کے ساتھ بیٹھ کے ان کے جو مشکلات ہیں ان کے بار غور کرنا چاہیے کہ اس کا مقصد تھا اور غور کر کے ہی ہم لوگ اس کڑی کو پورا کر سکتے ہیں جہاں یہ سارے ہمارے پڑوسی ہیں ہمارے دوست بن سکتے ہیں کٹھوس مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف کنونشن ساز کر آمت یت مز پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ تو دویمے لیڈر علاوہ ورکرو شرکت کر ات موقع پہ
ये पार्टी मामलन मौजूद सूरत हाल तो इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तक वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इन वाले इंतखाबन हवाले चुक सान मेहनत करें युत जन पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनावनस मज आसानी सपदे ये जन जराई इब्लाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान उमर अब्दुल्लाहन वोन जम्मू कश्मीर में गोड़े हालात सठई तशवीशनाक तो बांग्लादेश कन हालातन हज कत कर ब्रोह पज अस जम्मू कश्मीर हवाले संजीदा सपदुन ये जन तमो वोन सुप्रीम कोर्ट किस हुक्मस तहत पे अमल कर सब अमल कर जम्मू कश्मीर मज मुकर्रर वक्तस पे असम्बली इंतखाब ते अमल मज अन्न और साथियों और बुजुर्गों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 370 के मामले में। उस दिन से हम इन इलेक्शन की तैयारी में लगे रहे। बीच में लोकसभा के इलेक्शन आए, वो भी हमने निपटा लिए। अब असेंबली के इलेक्शन होने हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 4 रोज़ा जो है दौरे पे यहाँ आएंगे। हमारी उनसे सिर्फ यही गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और यहाँ इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू की जाए। और हम ये भी उनसे उम्मीद करेंगे कि हर पार्टी के साथ बराबर का सलूक किया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम इलेक्शन जो है लड़ने का काम करें। नया जम्मू कश्मीर का जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होता है। जम्मू कश्मीर के यहाँ अगर आप ज़मीनी सतह पर देखें तो नया जम्मू कश्मीर आपको कहीं दिखता नहीं है। अगर दिखेगा उसमें कोई बेहतरी नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो हमारी तबाही हुई है। अगर आप सिक्योरिटी के लिहाज से देखें, चाहे वो पीर पंचाल हो, चाहे चिनाब हो, चाहे जम्मू हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे आज मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को नहीं मिलता। महंगाई की बात अगर हम करें वो आपके सामने है। बिजली का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। बेरोज़गारी जो है इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी है तो जम्मू कश्मीर में है। हमसे बहुत सारे वादे किए गए थे 5 साल पहले, लेकिन उनमें से एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ। जहां मेरे अपने हालात ठीक नहीं हैं, मैं दूसरों के हालात पे क्या रोशनी डालूं। हम तो सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश में जो लोग हैं वो शांति से रहें। जम्मू कश्मीर से बहुत बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती हैं वहाँ पढ़ाई के लिए। उनकी सुरक्षा का सही इंतज़ाम होना चाहिए। और हम जो वहाँ से वापस आए हैं, फ़िलहाल हम बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बच्चे बच्चियाँ वापस बांग्लादेश जा सकें और अपनी तालीम जो है उसको मुकम्मल। अब फ़िलहाल तो एलजी के पास पावर्स होंगे ही, लेकिन स्टेट हुड वापस देने से ये लोग भाग नहीं सकते। इन्होंने पार्लियामेंट में जो कहा सो कहा। मैं तो उस चीज़ पे जाऊंगा जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, क्योंकि बाकी जगह ये शायद सच बोलें ना बोलें, सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोलने की जुर्रत नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने यकीन दिलाया है कि इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूरा, ये नहीं कि वो अधूरा हाफ हार्टेड दिल्ली मॉडल, पौंडीचेरी मॉडल, फुल स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाए। कांग्रेस पार्टी हज खोतून विंग हज नेशनल सदर अलका लांबान गुलिस्तान न्यूज़ सत कत करान वोनमुत जम्मू कश्मीर मज पार्टी तरफ असम्बली इंतखाबन मज हिस्सा निन बापत तैयारियन हतमी शक्ल दिन तो अमे हवाले पार्टी हिंद कया ऑब्जर्वर जम्मू कश्मीर हुंद दौर करन युत जन तमाम फरीकन सत कत बात करित उम्मीदवारन हुंद ऐलान त करन यी। और हमारा पूरा है कि महिलाओं को 90 सीटें हैं यहाँ चुनाव हो सबसे पहले, क्योंकि भाजपा की अभी भी मंशा नहीं लग रही चुनाव कराने की। चुनाव आयोग जो है वहाँ पर अपना निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हुए हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। शक आ रहा है कि ये चुनाव सरकार होने नहीं देगी, क्योंकि सरकार को पता है कि यहाँ जो अपना चाबी कंट्रोल उन्होंने अपने पास दिल्ली में रखा हुआ है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर हर तरीके से वो नहीं चाहती कि उनके हाथ से वो निकल जाए। तो लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ, चाबी लोकतंत्र के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में आनी चाहिए। फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर अगर हो रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के भीतर होने चाहिए, वहाँ की विधानसभा में चर्चा से होने चाहिए। ये लोकतंत्र बहाल के लिए कांग्रेस की कोशिश है। इसको लेकर हम महिलाओं की टिकटों की भी दावेदारी करने वाले हैं। हमारा संगठन पूरी तरह मजबूत से खड़ा है। नारी न्याय आंदोलनों की शुरुआत होगी। हम आगाज जो है चुनाव की हमारी पूरी तैयारी शुरू कर दी। भाजपा डर रही है, लेकिन हम इसे बचकर नहीं जाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लोकतंत्र बहाल हो। 30
सितंबर से पहले चुनाव कराने का आदेश है। अगर वो नहीं होता तो स्वाभाविक है कोर्ट के आदेश। सवाल बहुत अहम, एक अहम सवाल ये है कि एनसीपीडीपी इंडिया का पूरा आपका गठबंधन है, तो क्या वहाँ पर भी गठबंधन रहेगा? क्योंकि हाल ही में भी जम्मू में बैठक भी हुई है इस सबको लेकर के, तो क्या गठबंधन होगा? देखिए, हम लोग लोकसभा का जो चुनाव इंडिया अलायंस गठबंधन में लड़ी एनसी के साथ, और हमने कश्मीर की 3 सीटें में से 2 जीती हैं। और अभी अलायंस होगा, अलायंस नहीं होगा, किसके साथ, किस सीट पर, कितनी सीटों पर, ये हाईकमान तय करेगा। मेरा काम है महिला कांग्रेस का एक मजबूत संगठन को तैयार करके जो भी फैसला, जो भी उम्मीदवार उतारे जाएं पार्टी की तरफ से, उनको हम जिताने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। नाजरीन, खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। श्रीनगर में आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती बांग्लादेश कन हालातन हवाले कत करान वोन ज तानाशाही हुकूमत छन ज्यादा कालस लूकन हिंज नाराजगी चूर थवित हेकन, यल जन तिमो वोन ज प्रेथ हुकूमतस पज बांग्लादेशक मौजूदा हालात नजर तल थवित तालीम याफ्ता नौजवानन हिंद मसला अंजरावनस कुन खास जोन दिन। बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, उससे मुझे लगता है खासकर हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए कि जब जिस मुल्क में जवानों की इतनी बड़ी तादाद हो और इतने हसास होता है, जवान बड़ा हसास होता है, उसको जब आप पुश टू द वॉल करते हो, जब उसको आप नाउमीद हर तरफ से करते हो, उसको तंग करते हो, एक तरफ से महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरी तरफ से ऐसे कुछ फैसले करते हो जिससे वो बेबस और लाचार महसूस करता है। पढ़ लिख के कब तक एक जवान अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाएगा, और वो उस माँ बाप के सामने जिसके ऊपर महंगाई का इतना बोझ पड़ा हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त बेरोज़गारी है, और उसमें अग्निवीर जैसी स्कीम जो बिल्कुल ही आर्मी के बेसिक जो जज्बा है उसके ख़िलाफ़ है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, और उसके ऊपर रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे वीकर सेक्शंस है, कमज़ोर सेक्शंस है, उनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं कहती हूँ इसमें कोई आबादी का जो तनासुल है कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो कि आपकी रिजर्वेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ओपन कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के ख़िलाफ़ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके लिए बहुत बड़ा सबक है, खासकर जम्मू कश्मीर में जहाँ जवानों के बहुत बड़े मसाइल हैं। रोज़ हमारे दरियाओं में से, घरों में से खुदकशियों के खबरें मिलती हैं, ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। पर इसका बेसिक अगर हम देखें, जो वजह है वो ये है कि नौजवान इस वक्त फील करता है बेबस, लाचार, मजबूर, जो बांग्लादेश की हालत हुई। ऊपर से दबाव, ऊपर से जुल्म, ऊपर से सितम, UAPA, PSA बंद करो, बात मत करने दो। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए सबक है, हमें सबक सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे नौजवानों की मुश्किलात हैं उसका हम इजाला कर सके, और एक नौजवान को, नौजवान हमारा सरमाया है, हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। जब हम उसी को पुश देम टू द वॉल, जब हम उन्हीं को दीवार के साथ लगा देते हैं, जब हम उन्हीं को बेबस और लाचार कर देते हैं, तो नतीजा आपने देख लिया बांग्लादेश का। और यहाँ भी खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजती ज़ेरा पार्क बडगमिस में आज आंगनवाड़ी वर्करों तो हेल्परों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमद, यथ दौरान एहतजाज में शामिल वर्कर तो हेल्पर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी कराना। एहतजाज में शामिल आंगनवाड़ी वर्करों तो हेल्परों तरफ वन आमद जो तम महकमस मज पन फर्ज चुकसान अंजाम दिवान, ताहम तिहद मसलन जरानस हवाले कह कदम तुलना आमत यम किन तिम मुश्किलन मज हेन आय। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ ये मांग करना आई तिहद मसलन जरानस हवाले गसन कदम तुलने इन, तत हाल जारी करना आमद हुक्मनाम वापस निनिश ति मांग करना आमद। आज का प्रोटेस्ट ये आज 7 अगस्त है। हमारा प्रोटेस्ट
कुलगाम से स्टार्ट हुआ था। पहले हमने कुलगाम में किया था, उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में किया था। आज यहाँ 7 अगस्त बड़गाम में हो रहा है। वजह है HR पॉलिसी के खिलाफ है, जो अभी हाल ही में 2022 में HR पॉलिसी लागू हुई थी। उसमें रिटायर किए गए वर्कर्स, हेल्पर्स, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है, जबकि 30-40 सालों से वो काम कर रही थी डिपार्टमेंट में। दूसरा, इस बार अभी ज्वाइंट डायरेक्टर ने हाल ही में एक ऑर्डर इजरा किया था जम्मू प्रोविंस से कि जो आउट ऑफ वार्ड वर्कर्स है उनको डिसंगेज कर, लेकिन उसकी कल क्लैरिफिकेशन आई है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। इस वक्त जो बजट में ICDS की बजट पेश की गई है अभी 2 अगस्त को, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पेश की थी, 12 अगस्त तक उसका डिस्कशन चलेगा। लेकिन उसमें से उन्होंने जो ICDS का बजट होता है उसमें उन्होंने कटौती की है, कट डाउन किया है 300 करोड़। उसकी मुखालफत करते हैं। अगर एक तरफ से ये आंगनवाड़ी को बोल रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट आपके लिए पैकेज है, आपको इंक्रीज हो जाएगा ऑनरेरियम, आप अच्छे से काम करो और आप पोषण ट्रैकर चलाओ, आप अपना सारा काम करो, लेकिन दूसरी तरफ अगर बजट रिलीज हुई है, बजट उन्होंने पेश की है, उसमें 300 करोड़ क्यों कटौती हुई है? हम पुरजोर इसकी मुखालफत करते हैं। बजट चल रहा है, 12 अगस्त तक बजट चलेगा। हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी और मोदी सरकार से भी, जो बजट उन्होंने पेश की है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स के उसमें हमारे लिए भी कुछ रखे। अगर 12 अगस्त तक वो चलेगा उसमें हमारे लिए भी कुछ रखिए। दूसरा, DPC नहीं हो रही, हमारी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियां काम कर रही है एज वर्कर एज हेल्पर। सर डिपार्टमेंट से मुतालबा है DPC लागू करे, उनको भी इंसाफ मिल जाएगा। तीसरा, अगर हमारा ऑनरेरियम ये बोल रहे हैं मंथली बेसिस पर हो रहा है, लेकिन अभी तक 4 महीने हो गए हैं, कोई ऑनरेरियम अप्रैल से नहीं मिल रहा है। रिक्वेस्ट आपकी वसातत से डिपार्टमेंट से वो रिलीज करे हमें और मंथली बेसिस पर हमारा ऑनरेरियम रिलीज करे। दुकानदारों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, या दौरान एहतजाज में शामिल दुकानदार इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल दुकानदारों तरफ वन आमुत यत मानजूर जेनन ताहम इंतजामिया तरफ बस स्टैंड मुंतकिल करने हवाले कदम तुलना आमुत, यम सद रोजगार मुतासर सपद। एहतजाज में शामिल दुकानदारों तरफ मांग करना आमुत जात मामलस कुन गछ जोन दिन युन युत जन तिमन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने यन। मोहम्मद ताहिर वानी, कोलगाम KDF चेयरमैन, तो अमी मूजूब जमा गमित कि कोलगाम हसा आव तहस नहस कर, यमि शनाखत हसा कह ब्यूरोक्रेटस हसा यमि शनाखत तहस नहस कर, यमि शक्ल यन बिगाड़, यमुक जीता जागता सबूत कोलगाम दफ्तर वाइंड अप करें तो बदल शायन खोल। वन सोन तिजारती मरकज महाराजा हरी सिंह पे तन पे मरकज अमिच मरकज हैसियत बिल्कुल मसक कर ये 55 दुकानदार अ गई 55 दुकानदार, बे गई तिहद सेल्समैन, बे गई तिमन हंद दुकान मालिक, तो वो कूतिस पे असर कर। सोन रोजगार ताल्लुक सह नूराबाद तो सह शुपियन कन कैसन इलाकन पे डिपेंड। योर कस्टमर तेली हेको बापार कर तम सोन बापार नामुकम तुलान वाइंड अप अड़े बे शाय मुखालिफ क्या खुलतन लिरवे कोलगामिस बनजई यह कोलगाम नबर बन अड़ कह ऑलरेडी बनोमुत डिस्ट्रिक्ट बस स्टैंड लारू, मगर लारू बस स्टैंड सफर गन सोन कोलगाम यह रूद ना अमे अड़ुक रूद ना फायदे कहें रूद नुकसान योत। सोन गरज यह सोनिस जिले के दुकानदारी जिले किस बापारस गि नुकसान गन कह, बस यो मकसद सोन इन 5,000 दुकानदार 5,500 हंदन गरन अत रिलेटेड घर वाल सन आटो वाल लोड कैरियर वाल कांदार यह लेबर लेबर कस गुड़ पे सामान ये सारन या बाजारस मज रेड़ कम कर सारे हूं गो सोरी रोजगार सफर। यह सफर न गि खतर सोन डिमांड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनस ये अगर तुद हिसाब ठीक कह वन बन डिस्ट्रिक्ट बस स्टैंड अतन कह तेल अल्टरनेटिव कोलगामिस वे आउट कर अड़ बनो कोलगामिस मज अड़ क्या
تو ناظرین ات ووت خبرنامہ دیو اجازت خدائے سوال